Good evening, sir. I am Afas Farooq from third year mechanical engineering. We are all from CTR Club, Campus TV and Radio Club. Our club monitors all the activities in the campus and talk to alumni and all the successful people from our college. Today we are meeting you. So, Great. this is Avinash Kumar Sena from Mechanical Engineering third year, and this is Keshav Jha from Mechanical Engineering third year. And we have some questions for you. We'll ask them the questions from you. Sure. So, I have heard about the campus radio TV, and I'm continuously watching your efforts on the online YouTube, and it's very good to see all that stuff when you are out of the college. You are doing very good in your campus radio it means TV. a lot coming from you. Sure. So, sir, shall we start the session? Sure. So, the first question I'd like to ask you, like before starting the whole session, I'd like you to tell us about yourself in a short, brief introduction. So myself Nishant, as you all know, I have completed my BTech from Bhagalpur College of Engineering, and my branch is Electrical and Communication Engineering. I have passed out in 2022. When I passed out from my college, before passing out from the college, I have started a company called TechBlaze Labs in my third year. Because in third year you are pretty much in your campus, in your safe environment, so it's a very good time to start anything new, because at that time your risk taking capability is very high. So I started that company at that time, and now currently I own two more companies. One is Geltic Global, and one another company, it is in under the incorporation, it is called the Cool Agritech. It is funded by the Bihar startup, so it is also in the things. So this is all about me. Sir, as you know, TechLabs is an uprising company Yeah. and inspiring many students across India. So, how did you come up with TechLabs Labs? Techless Labs, actually, when I am doing my BTech in Bhagalpur College of Engineering, at the same time I have attended few workshops in IITs, and IIT Bombay and IIT Delhi, and I feel that not only in Bhagalpur College of Engineering, but there are a lot of colleges where the actual practical skill is lacking somewhere. So I thought, why don't I start a company which will solve these issues and get them learn the actual practical skills. So that's how I started this company. And one of the most one of the most important thing is when I am in third year, I become the coordinator of the robotics club, and that time a few companies come to our college and provide some workshops and all. So I feel like there are some things which is lacking there. So I think if I would improve that, it would be great for the whole society, and that's how I started the company. So as I said that it, yourself, your early education was not that strong. What difficulties did you feel? Yeah, you are right. My early education is from a government school, and yeah, it's not that good. I belong to a very small village in early, and later shifted to a small town. So yeah, it's there is a difficulty out there, because being belonging from a small town, there is a very lack of good tutors out there. There are lack of good resources out there. But somehow I am very much into the science and science exhibition kind of thing. It gets me motivated to study the science, and also science is my love. So that's how I am in the BC, and yeah, it's a bit difficult, but yeah, afterwards it's easy. So, just out of curiosity, there's a question: was TechLabs pre-planned or it was just a hunch of yours? Actually, it was kind of mixed. It was kind of mixed question. The planning was I'm planning for this company since from my first year. The dream came when I was very young. From that time, I have a dream to start in company which works in the field of robotics and automation and IoT. But the establishment of company was a hunch, because at that time it was happen it's now the time to start the company. So starting a company was a hunch, but the idea and the dream is from very much from the childhood. So. So, what was the earlier difficulties like? The earlier difficulties was one of the सबसे पहली डिफिकल्टी तो ये आती है ना कि हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स दैट यू गोना स्टार्ट अ कंपनी. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. Another thing is how to start a company, because at that time no one have started any startups in our campus, no any senior, because most of them are planning for the placements, and also no any guidance at that time. So it is one of the difficulty. Another difficulty is as
we all belong to like a family which is more into the farming, not into the business. So we don't have any family background which supports this kind of activity. So these are the difficulty in the early days. But yeah, I have some good friends who have encouraged, and that's how I started the company. Sir, at this time of age, where everyone prefers to be safe, like लाइफ में कुछ भी सेफ नहीं है भाई, ये तो श्योर है. no, वेदर यू चूज लाइक प्लेसमेंट, अभी कंपनियां फायर कर रही है. सो या दिस इज अ रिस्क. as you told about convincing parents, so how do you Like it is still in the process. I have convinced my mother somehow. पापा अभी भी अब्बा नहीं मानेंगे, वो वाली बात है ना. बट स्टिल लेट अस सी, विद इन few years they're gonna like satisfy with my work, so I hope they'll convince. So how did you manage your financial stability during the startup? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो स्टार्टिंग डेज में तो इनस्टेबिलिटी रहती है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एनी कंपनी, आई वुड सजेस्ट यू ऑल whenever you are planning to start any startup or thing, pre-plan the like funding where you are getting, like, because if you don't have the funding, it's very difficult to survive now time, because there are a lot of companies out there who is ready to crush you. So please plan for some funding, because at certain point of time you get demotivated when you don't have any like funds in your account. So starting के time पे तो काफी difficult था, but now I have like earned some money from few workshops and all, and few trainings and few clients. So now at this point of time it's a bit stable company, but starting के time पे तो ऐसा रहता था कि वो सब 2 महीने बाद कंपनी बंद करने की नौबत आएगी, तो वो रहता है थोड़ा. और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनियां बहुत ही अर्ली डेज में बंद हो जाती है. तो ट्राई टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस एंड ट्राई टू लाइक सेव सम मनी इफ यू वांट टू प्लान फॉर स्टार्टअप्स, बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू पोर योर ओन मनी इनटू इट, तो प्लान करना पड़ेगा. so as you said that कि आपका अर्ली एजुकेशन जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, हाँ. तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं. अभी आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है लोगों के लिए. आप IITs NITs में जाके सेमिनार्स लेते हैं, वहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के बच्चे मिलते हैं, डिफरेंट Sure. रीजन के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन बैरियर जो आता है उसको ओवरकम आप कैसे करते हैं? लिटरली जो फर्स्ट टाइम मैं IIT बॉम्बे जा रहा था, लाइक इट वाज लाइक फॉर मी ऑल्सो, मैं बहुत ही नर्वस था, बिकॉज आई डोंट नो, इवन वहाँ एक स्टूडेंट साउथ अफ्रीका का ही पहुँचा हुआ था. सो आई एम प्लानिंग की लाइक बिकॉज बिलोंगिंग टू बिहार देर इज वन लाइक डिसएडवांटेज दैट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन won't get that better, because you don't get that circle here. So I'm a bit like confused that how I wanna convince them on how I wanna deliver my workshop or my content there. So I have asked them, actually I am planning that कि बच्चों से मैं पूछूंगा if you are comfortable in Hindi, so we're gonna consider, because I have planned that most of the students, because IIT Bombay is in North India, so like most of the people are from North India, but some people are from South India, some are from Northeast, and one from South Africa. So English is the common language there, and somehow I delivered my whole lecture in English, and they have liked it very very much, and they have given a very good review. I think it was 98% 5-star review. So yeah. That's a great achievement for the first time. That's right. After that I get a lot of confidence. So communication barrier, it's not that much difficult once you started, and if you have the like good technical skills, language don't much like, because वहाँ पे तुम चीज़ों को समझा पाते हो. It won't bother you. Can you tell us about your other achievements other than technical? Other achievements, in my past, when I when I was in 10th standard, or when I was in like high school, I have won a lot of science exhibitions out there. And then you have got a chance to go Go to Japan. Yes. Actually, Japan in 2018, after my 12th, Japanese government or Japan Science and Technology, actually, there is a event called Youth Exchange Program. So they are, because Japan is aging country, so like India and Japan Youth Exchange Program is there. So I went there. I visited a lot of universities there. So that's how they are providing some scholarship out there. So for that purpose, I have been there for 1 week in 2018. Yeah. So, as you said, you went to Japan, but I've heard that you didn't join any university. Yes, actually, at that time,
I thought like if I join the Japanese university, I think because I'm the single like child of my mother, so I thought I would be with my brother instead of Yeah. being in because हाँ तो वो एक बहुत बड़ा रीजन। दूसरा रीजन ये भी था कि I love this country a lot, so I don't want to change this country because when you are in 12th grade, you are not that mature, and your parents convincing your parents will be difficult to like going abroad. So these are the things. So what is your success mantra which helps you to stay motivated during your Dream big, work hard. And one of the quotes from Swami Vivekananda uh, उठो जागो और तब तक चलो जब तक मंजिल न मिल जाए, तो that is the success like my सर एक वो आप श्लोक जो बताए थे वो भी श्लोक which sloka तो आप बताए acha that sloka actually is this sloka is from Bhagavad Gita because sometimes the things is सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अभी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। so somehow you all feel this thing कि like हम चाहते कुछ हैं पर हम करते कुछ हैं because it is your nature somehow you plan कि स्टडी करना है भाई इस सेमेस्टर में बहुत पढ़ना है and later on फिर एग्जाम टाइम में पूरी नाइट स्टडी चल रही है। होप आप ये चीज फेस कर रहे हो। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय का शायद 33वां श्लोक है ये। तो श्री कृष्ण मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि नो मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, ठीक है, यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, जैसा आपका नेचर है यू गोना वर्क लाइक दैट। बट ऐसा नहीं है कि फिर सेल्फ कंट्रोल का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। तो द नेक्स्ट श्लोक का श्री कृष्ण टोल्ड दैट कि इंद्रिय से इंद्रिय सर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो यो न वसमा गच्छति तो यस्य परिपंथिनो। तो वहां श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि स्लोली आपको अपनी जो इंद्रिय हैं उनका जो राग और द्वेष है मीन्स लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। इफ यू डोंट लाइक स्टडिंग समहाउ यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट एंड स्लोली यू लाइक दैट थिंग। तो धीरे धीरे आपको चीजें एंड स्लोली योर नेचर गेट्स चेंज एंड यू आर इनटू इट। तो these are the two quotes which I am very much inspired from the Bhagavad Gita, and I hope you also take care of your rag and dvesha because it determines your whole life। और अगर सिंपल भाषा में कहें तो हमारे कलाम साहब ने बहुत अच्छे से इसको कहा है, ठीक है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, अपनी आदतें बदल सकते हो, यकीन मानो वो आपका भविष्य बदल देंगे। तो दैट इज द कोट फ्रॉम माय साइड। सर जैसे आपने स्टार्टअप करा, या आपने कहा कि आपने फर्स्ट ईयर से सोच के रखा था कि आपका एक कंपनी होगा जो रोबोटिक्स फील्ड में वर्क। हाँ 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 आजकल के स्टूडेंट्स में एक चीज़ प्रॉब्लम जो मेरे साथ भी है इनके साथ भी है कि हम लोग भटकते बहुत हैं। लाइक आज IoT जरूरी भी अच्छा है। लग रहा है तो IoT पसंद आ रहा है, कल अगर मेरे को कोडिंग अच्छा लग रहा है तो आई एम मच इनटू कोडिंग। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं बट एक स्टेबिलिटी जो हो रही है देखो मेरा मानना है कि टिल योर सेकेंड ईयर एक्सप्लोर ऑल द फील्ड्स, ठीक है, इवन अगर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है टिल योर थर्ड ईयर यू कैन एक्सप्लोर द फील्ड, बट व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर डिसाइड एनी वन फील्ड बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई टर्म। लाइक अगर आप पूरे साल भटकते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो टिल योर सेकेंड ईयर जितना फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोर कर लीजिए एंड विच एवर फील्ड यू लाइक द मोस्ट एंड द स्कोप इज हाई because sometimes you like the field and scope is less, so you have to face a lot of difficulties there. So choose a field which you like the most and choose the field where there are a lot of opportunities there out there, so and start working on it for the rest of the 2 years. It will be very helpful. So what do you like to do in your free time? In my free time usually I like to read Bhagavad Gita or some motivational books. One two books I wanna name here if you wanna read. It's a very good book. One is 7 Habits of Highly Effective People. Another book I would suggest you must read is Man in Search of Meaning. So these are the two books I suggest everyone must read, and the third one Bhagavad Gita. So yeah. as you are from BC Bhagalpur, the same college as we are in, I'd like to ask you आपका जो co-curricular activities में participation था during college time और academics में जो participation था वो बैलेंस आउट कैसे होता था? मैं तो को करिकुलम में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। मेरी एकेडमिक्स इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही है स्टार्टिंग के टाइम पे बिकॉज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन नुक्कड़ एट द सेम टाइम रोबोटिक्स एट द सेम टाइम सम लाइक अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। सो आई वुड सजेस्ट लाइक दिस इज द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में जो भी लोग हैं आई वुड सजेस्ट गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। बट या
like you have to like slice some time for your studies as well, because sometimes what happen, we are enjoying that time, but वो बाद में फिर आपको उसको मेकअप करने में बहुत दिक्कत आती है. So I'm not good into this, so I won't suggest that how to manage, because I myself haven't managed that time. So जैसे अगर कोई स्टूडेंट बीसी भागलपुर से अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे तो क्या प्रॉब्लम को फेस करना है, क्या ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जिसको अगर हाँ बिल्कुल. डूज एंड डोंट्स आप तो सबसे पहली बात तो यार देखो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है और तुम उसको सॉल्व करना चाहते हो और तुमने स्टार्टअप शुरू कर दिया, ये गलती मत करना. तुम्हें जो प्रॉब्लम लग रही है वो सामने वाले को भी प्रॉब्लम है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार मार्केट रिसर्च कर लो, थोड़ा लोगों से जान लो, समझ लो कि क्या एक्चुअल में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. बिकॉज अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और आप अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो स्टार्टअप सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता. बट आप कोई ऐसी प्रॉब्लम चूज कर लिए जिसकी सॉल्यूशन की किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और पॉइंट, तो वहाँ पे वो बड़ा दिक्कत करता है. पेन किलर बेचना आसान होता है, मल्टीविटामिन के लिए आपको बहुत मार्केटिंग करना पड़ेगा और उसके लिए फिर चाहिए आपको बहुत सारा पैसा. और बिलोंगिंग टू अ टीयर 3 कॉलेज एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इन्वेस्टर आपके ऊपर पैसा लगाना नहीं चाहता. इफ़ यू बिलोंग टू एन IIT और लाइक IIM तो वहाँ पे इन्वेस्टर को भरोसा होता है फॉर द मनी. बट बिलोंगिंग टू अ टीयर 3 कॉलेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट सम फंडिंग. सो चूज एनी स्टार्टअप जहाँ पे, चूज एनी आइडिया जहाँ पे तुम्हें 100% श्योर है, डिस्कस इट प्रॉपरली, बिजनेस प्लान रेडी कर लो, उसके बाद ही कंपनी रजिस्टर करना या फुल टाइम उसकी तरफ जाना. अदरवाइज यू लाइक समटाइम्स वो डिमोटिवेशन आता है, तो ये ध्यान रखना है. प्रॉपर ऑल नो कि आपका कंपनी का स्टेबल हो चुका है, तो आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए. और अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, और अभी कंपनी को थोड़ी और स्टेबिलिटी की ज़रूरत है. आई वोंट से दैट इट्स कम्प्लीटली स्टेबल कंपनी, बट हाँ फ्यूचर में हायर स्टडीज़ का प्लान तो है, बिकॉज ये स्टडी रुकनी नहीं चाहिए. अब मे बी इट्स नॉट एकेडमिक स्टडी, study is continuously going on, but I'll try for some academic study also, because having a degree is a good thing. तो अभी कंपनी स्टार्ट करने के बाद टाइम थोड़ा कम ही मिलता होगा शायद. हाँ श्योर, अब अच्छी बात है, बिकॉज सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा. तो बट ऐसा कोई आपका फेवरेट हैबिट है जो आप रोज परफॉर्म करना चाहते हो, वेदर इट्स प्लेइंग और रीडिंग और राइटिंग एनीथिंग? मतलब डेली यार, और तो कंपनी है, इन अ वे उसके अलावा एक साइड हॉबी जैसा. साइड हॉबी भी मेरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नई मतलब जो मतलब कंपोनेंट्स वगैरह मार्केट में आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो वो रहता है. इसके अलावा मुझे थोड़ी मूवीज़ देखना पसंद है, तो जो भी नई मूवीज़ आती है तो मैं वो देखना पसंद करता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं डेली करना चाहूँ, इट इज़ अ ध्यान. I think it's boring for you all guys, but these are the things I would prefer, like morning meditation, तो वो मैं prefer करता हूँ. I think it's so boring for you guys, but yeah, you can do that. बहुत ही अच्छा रहता है. सर एज यू सेड यू वर इन नुक्कड़, मैं भी नुक्कड़ में हूँ. अरे वाह. फर्स्ट ईयर से ही नुक्कड़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और कॉलेज एक्टिविटीज़ में जो एक्टिवनेस है वो नुक्कड़ से ही आई है. हाँ बिल्कुल. सबसे पहले नुक्कड़ क्लब ज्वाइन करा. आवाज़ निकालना पहले तो सीख जाता है इंसान. फ्रैंकली बोल पाना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो सर आपका कोई ऐसा मेमोरी नुक्कड़ का आप शेयर करना नुक्कड़ का तो यार बहुत सारा मेमोरी है. लाइक मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम मतलब ऐसे कॉलेज के बाहर कहीं परफॉर्म करे थे, कोई एक ऐसे इन पब्लिक, तो वो चीज़ थी. एंड द पब्लिक क्राउड चीयरिंग इट अप, तो वो चीज़ था. दूसरा लाइक आई गेन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन नुक्कड़, शायद आप लोग को भी मिले होंगे, है ना. तो वो एक बहुत बड़ा ये रहता है, और वो जो बॉन्डिंग बनती है, बिकॉज आप सुबह सुबह 5 बजे जा रहे हो वहाँ पे. कई बार ये डिफिकल्ट भी होता है, बिकॉज आपको कॉलेज के पहले प्रिपेयर करना होता है ना. तो सुबह 4 बजे उठ के आपको तैयार होना है 5 बजे. एंड फ्रॉम अगर फर्स्ट ईयर से ज्वाइन कर रहा है तो ड्रेस में जाना है. तो दैट आर द मेमोरीज, लाइक बिकॉज और फिर उसके बाद कंटिन्यू आपको कॉलेज में क्लासेस भी करनी है, तो शाम में भी प्रैक्टिस करनी है. तो हाँ, बट मज़ेदार होता है बिकॉज दोस्त काफ़ी सारे रहते हैं. तो या बहुत ही मज़ेदार मेमोरी था. एंड आई स्टिल रिमेंबर, एंड व्हेनेवर आई रिमेंबर आई फील द गूज़बम्प्स. लाइक दैट इज द लाइक वन ऑफ द अमेजिंग मेमोरी एट दैट टाइम. आई होप यू enjoyed that. बट एक्चुअली कोविड के बाद वो चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो गई. हाँ श्योर. तो आप एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कोविड से पहले जो नुक्कड़ का पूरा शेड्यूल होता था आप लोगों का? तो कोविड के पहले यार नुक्कड़ में पूरा एक अलग ही जान था.
लिटरली वी आर प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन मतलब वेरी गुड कॉलेज जहाँ पे नुक्कड़ का कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता है। इसके अलावा हम लोग का प्लान था बट कोविड आने की वजह से वो एक गैप बन गया। तो कहीं ना कहीं एक ये होता है कि कल्चर धीरे धीरे जो इन्हेंस हो रहा था समटाइम्स अचानक से अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो थोड़ा सा डिग्रेड होता है। बट मैं देख रहा हूँ आप लोग बढ़िया कर रहे हो तो We went to IIT Kharagpur this year यू डूइंग ग्रेट। and आपका जो लास्ट स्क्रिप्ट था क्या कहेंगे चार लोग, हाँ वो हमने पहला परफॉर्म करा था। अरे वाह सही है। सो यू यू हैव कैरीड इट फॉरवर्ड। The बहुत legacy बढ़िया। has carried out. हाँ ऑफ कोर्स बिकॉज ये होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को मतलब वो ड्रॉप डाउन कर देते हैं तो वो नहीं होना चाहिए बिकॉज एक क्लब को शुरुआत करने में काफ़ी एनर्जी लगती है। अभी आप IIT खड़गपुर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर में भी आपके जो जूनियर्स हैं वो किसी और IITs में जाएं और वहाँ पे We're planning to visit go to किया। IIT Roorkee this year. वो बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छा है फिर तो। ऑल्सो सर इस साल टेक्नोरिटी ऑर्गेनाइज जो हुआ था उसमें नुक्कड़ का इवेंट हुआ था, तो वी वन इन दैट। ओह वाह बहुत ही बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन। Apart from Nukkad, any memories? एनी मेमोरी ऑफ कॉलेज? कॉलेज की मेमोरी काफ़ी सारी मेमोरी है यार। लाइक कॉलेज इज फुल ऑफ मेमोरीज यू नो है ना। व्हेन यू वेंट आउट ऑफ द कॉलेज यू द होल कॉलेज लाइफ इज लाइक फुल ऑफ मेमोरीज। With some faculties? With some faculties I would prefer one of the faculty from who is like Abhinav sir, hope you know. Yes. So he's teaching signals and systems. So actually I have started late actually in their session like मैं शायद घर पे था तो मैंने सिग्नल सिस्टम स्टार्ट करा और मैं क्लासेस में था नहीं। मैंने बहुत ही लेट ज्वाइन करा उनका जो सिग्नल सिस्टम की क्लास थी। तो मेरे मार्क्स मतलब जो उनका मतलब मेरा जो उनके प्रति मतलब जो उनका मेरे प्रति पर्सपेक्टिव था इट वाज काइंड ऑफ बहुत ही डल स्टूडेंट है वो बन गया बिकॉज आई हैव ज्वाइन लेट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन और वो पूरे ट्रांसफॉर्म वगैरह चल रहा था। आई वोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बट लेटर मैंने फिर उसको स्टडी करा and I become very good at it. तो फिर वो एग्जाम्स हुआ तो I got the one of the very good marks in probably। तो sir was surprised कि I haven't expected this marks from you। तो ये एक मेमोरी है। दूसरी मेमोरी ये है कि रोबोटिक्स के टाइम पे जो रोबोटिक्स क्लब था हमारा तो मी एंड माय फ्रेंड वेंट टू IIT दिल्ली एक्चुअली फॉर अ वर्कशॉप देयर। बट वर्कशॉप के लिए गया है तो फिर वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हो रही थी तो वी थॉट व्हाई डोंट वी पार्टिसिपेट इन इट। तो मैंने वहीं से दिल्ली में कंपोनेंट्स परचेस करे और विद इन अ डे मतलब पूरी रात भर जग के हमने रोबोट बनाया और वहाँ पे पार्टिसिपेट करा। ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बेकार रोबोट था और हम लोग वहाँ पे हार गए बट स्टिल दे गिवन अस द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट एंड ये एक मतलब था कि आप ऑन स्पॉट भी कुछ ऐसा प्लान कर सकते दैट हो। एंथुसियाज्म। हाँ वो रहना चाहिए तो ये चीज़ था। सर और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिनको लोगों को पता नहीं होता है फर्स्ट ईयर आते हैं, तो ऐसे कोई स्टार्टअप के कंपटीशन बिहार में होते हैं? हाँ स्टार्टअप बिहार का कंपटीशन होता है। अगर आपका स्टार्टअप का प्लान है तो आप उसमें अप्लाई करो। और अभी तो बिहार गवर्नमेंट को आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं अच्छे से। तो अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट भी 10 लाख के आसपास का फंडिंग करती है। तो अगर किसी को भी लग रहा है कि उनके आइडिया में दम है थोड़े से प्लान करो, बिजनेस प्लान रेडी करो और उनके टाइम टू टाइम्स आते रहते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप बिहार में अप्लाई कर सकते हो। दे वुड प्रेफर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देयर। सो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है बिकॉज वहाँ पे फिर आपको इनिशियल कैपिटल आपको खुद का नहीं लगाना पड़ता। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए या जो एक इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए तो एक सीड फंड आपको मिल जाता है। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर तब आप अपना प्रोटोटाइप बना सकते हो, इन्वेस्टर को पिच कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप बिहार में आप लोग ट्राई करो है ना। ये बहुत अच्छा चीज़ रहता है। सर एज वी नो कि आप इस बार वर्कशॉप अपने कॉलेज में लिए हैं तो इस कॉलेज से पढ़ने के बाद फिर इसी कॉलेज में आकर वर्कशॉप देना कैसा फील हुआ? हाँ ये तो बहुत ही मतलब लाइक मैस्मराइजिंग जर्नी कह सकते हो कि आप जिस कॉलेज से पास आउट हुए हो आप उसी कॉलेज के साथ MOU साइन कर रहे हो। हाँ तो वो तो बहुत ही खुशी का बात होता है। और जो कमी मतलब हमारे टाइम पे थी अपने जूनियर्स को मैंने वो कमी फेस नहीं करनी दी तो उस बात की भी खुशी है। दूसरी बात सबसे अच्छी ये लगती है कि लाइक फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड लाइक 4-5 दिनों का जो भी वर्कशॉप था दोबारा से ये कॉलेज लाइफ कहीं ना कहीं वो याद करने का मौका मिलता है। नॉस्टैल्जिया जो कह सकते हो। तो बहुत ही अच्छा था। सर 9 to 5 जो जॉब होती है और आपका जो ये जॉब है मतलब अपना जॉब Startup। उसमें स्टार्टअप में आपको क्या देखो 9 to 5 जॉब जो होती है वो आप वो काम कर रहे होते हो जो आपको बोला जाता है करने को। इन स्टार्टअप यू आर डूइंग द थिंग्स विच यू लाइक द मोस्ट, द चेंज विच यू वांट टू सी।
तो वो एक चीज़ रहता है कि फिर वहाँ तो आप 9 to 5 करते हो, यहाँ आप 9 to 9 भी कर सकते हो, देयर इज नो एनी लिमिट, बट स्टिल यू आर इंजॉइंग दैट थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपका खुद का काम होता है, आप खुद चाह रहे होते हो। तो यहाँ तो फिर आपको अगर आप ये सोच के चाह रहे हो कि वहाँ मेरे पास बहुत टाइम होगा बचाने के लिए, तो शायद स्टार्टअप ना करो, ज़्यादा बेटर है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको लगेगा आई विल बिकम अ बॉस एंड आई विल सिट ऑन द चेयर एंड एवरीवन विल वर्क अंडर मी, बट इन इनिशियल स्टेज यू हैव टू वर्क लाइक मच मोर देन द 9 to 5। बट हाँ, तुम्हारा अगर फील्ड अपना है, तुम्हारा अगर इंटरेस्ट उस फील्ड में है, तुम बहुत इंजॉय करोगे। सो सर आपको क्या सजेशन कि क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है यार कि मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर बहुत मतलब अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और अगर लगता है कि बहुत बढ़िया आइडिया तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, गो विद द जॉब, और कुछ टाइम तक जॉब करो ना, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। तब तक हो सकता है कि वाइल डूइंग योर जॉब, है ना, 9 to 5 से जब उब जाओगे, है ना, एंड व्हेन यू प्लान कि अब इस क्यूबिकल से बाहर आना है, तब तक कुछ आइडिया मिल जाए आपको, मे बी यू गॉट सम गुड फ्रेंड्स आल्सो, तो ये भी एक ऑप्शन है। बाकी तो यहाँ पे सारे बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है, बिकॉज बिलोंगिंग टू Tier 3 कॉलेज वो एक टैग नहीं होता है तुम्हारे पास, ऑल नॉलेज बहुत होता है, बट समटाइम्स पीपल डिमांड अ टैग ऑल्सो, सो आफ्टर गेट यू कैन गेट द टैग ऑल्सो फ्रॉम द IITs और NITs। तो ये ऑप्शन भी बढ़िया है जो लोग कर रहे हैं, बट हाँ मेरा ये कहना होगा कि जो भी चूज करते हो परफेक्टली उस पर काम करो, बिकॉज समटाइम्स सभी गेट के लिए कर रहे हैं, फिर प्लेसमेंट्स के लिए कर रहे हैं, अभी लग रहा है नहीं चलो स्टार्टअप कर लेते हैं, तो ये मत करना। आई सजेस्ट कि फोकस ऑन ओनली वन थिंग एंड वर्क हार्ड ऑन दैट। कुछ एग्जाम्पल बताए थे पिका मल्टीपल। अच्छा हाँ, ये चीज़ एक्चुअली है क्या कि कई बार व्हेन यू स्टार्ट एनी स्टार्टअप तो आपके पॉकेट थोड़े से खाली रहते हैं, है ना। अब व्हेन समवन जॉइंड द जॉब तो उसके पॉकेट भरे हुए रहते हैं इन इनिशियल डेज स्पेशली, बिकॉज दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड इन अ स्टार्टअप ऑल्दो यू अर्न सम मनी बट यू हैव टू री इन्वेस्ट दैट इनटू द स्टार्टअप। सो एक्चुअली द थिंग इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, you have heard about it, like if I offer you a job that is only for 30 days, ना, and in one job you would get 1 lakhs at the first day, हर एक दिन आपको 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, another lakhs to the second day, है ना, थर्ड डे पे भी आपको 1 लाख मिल रहा है, and there is a job which gives you only 1 rupee at the first day, 2 rupees at the second day and 4 rupee at the third day, and it's just compounding till 30 days. So which job would you prefer to take? कंपाउंडिंग जॉब। कंपाउंडिंग, समटाइम्स पीपल वुड थिंक कि पहले दिन लाख मिल रहा है, यहाँ तो 1 ही रुपए मिल रहा है, नेक्स्ट डे व्हेन यू कंपेयर यू हैव 2 rupees, another have 2 lakhs, you have 4 rupees, someone have 3 lakhs, so you are very much far behind. This is not the perspective, it's very hurtful. Like when you see your friend getting having 4 lakh rupees and you have 16 rupees in your pocket, na, it hurts the most. But when you are at the 38th day, they have only 30 lakh in their bank account if they have saved all the money, and you have, guess how much money you would have? It would be more than 100 crores. Okay, so that is the difference. So if you multiply that days into the years, so if I earn 1 rupees from my business in one single year, if I work for 30 years, the one who is getting 1 lakh per year, like you multiply with the 10, okay, so I would have 1,000 crores and they have only 30 lakhs in their bank account. So that is the difference between like startup and a job. So there is a compounding effect in the startup. You cannot compound it in your business, like in your job, because you are giving the time there. Time को आप multiply नहीं कर सकते. You are the one person and you cannot multiply that. But in startup, you have one client. Next day you have 2 clients, and there is a very high chance within a year or within next month you get a 4th client, and you can multiply that. So this is the compounding effect which happens in the business, and which is the reason I chose this path. So any books related to startup you want to suggest? Any book related to startup, you can read a lot of book out there. I haven't read any book related to startup. फाइनेंस वगैरह के लिए मैंने कुछ लेक्चर्स वगैरह देखे, हाउ टू मैनेज दैट थिंग। इसके अलावा मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टार्टअप के लिए बुक नहीं पढ़ा। और रीड भगवद गीता, दे हैव ऑल द आंसर्स व्हिच कम्स इनटू योर स्टार्टअप, योर लाइफ, wherever you stuck. So that is the book I suggest. Because doing business on ethics is the good thing. Because आज के टाइम पे तो भाई स्टार्टअप में बस पैसा मल्टीप्लाई करना सिखाया जा रहा है, बट इफ यू आर ethical with your business, if you are really doing something good for the society, then at the end you will die with the peace and you will live with the peace. So
that is the point to always keep into mind. Sir, I think now we have come to the end of the session. I'd like to ask you what advice you would like to give to your fellow juniors. जो भी कर रहे हो यार वो दिल से करो, जान लगा दो, बिकॉज दिस 4 years विल डिसाइड योर बेस्ट ऑफ द 40 years. So, जो भी करना है दिल से करना है और शानदार करना है. दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you, sir. Like throughout the session, you have been very calm and cool. Like you answered all our questions with very, I think, very good, with very good perspective. Like you gave us many insights related to business and life also. Like, we are blessed to have a tutor like you. Like you guided us a long way. And आप लोग का भी मेरे को कैंपस भी काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज मैं जब देखता हूँ कुछ प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया ऑन द कैंपस भी आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगता है. आई एम प्रीटी श्योर जो पहले पास आउट हुए होंगे यहाँ से इन द 80s एंड 90s, जब ये उस कॉलेज को ऐसे यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया पर उनको देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती होगी, बिकॉज दिस इज द लाइक टाइम जब कि लाइक ग्लोबली आप कनेक्ट हो सकते हो एक दूसरे से. तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग. कीप डूइंग दिस. थैंक यू. thank you, sir. Thanks a lot.